send you the PPT. Okay, what I have discussed with you, I have already sent it to you. Okay, so I will have a discussion and ma'am will send it to you. Okay, on Wednesday we will be having a quiz. Okay, it will be a class test. So please, I have already sent you the PPT. So this all together till today and tomorrow I'll be completing your next unit also. So I would request you on Wednesday we will be having a class test, and please prepare anything, any preparation help you need, then I'm there. You can clarify the doubts and everything. Okay? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, अभी ma'am. ठीक से सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कोई इश्यू नहीं है. No, ma'am. So we can start with the presentation thing. I think you can see the presentation, Yes, ma'am. right? Can you see Yes, the ma'am. slides? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Today there is a new topic, which is the last topic of the first unit. So it is about the contributing disciplines in OB. Okay. So what are the before this we have seen the introductions, the functions of OB, everything. Okay. Now today we will see the contributing disciplines in OB. Okay. So all these things that you have to learn in this is, okay, the learning objectives is to understand the contribution of other disciplines in OB. Like जब हम previously बात कर रहे थे various factors, functions of organizational behavior, you हम दोनों चीजों की बात कर रहे थे. We were talking about the various disciplines because it involves motivation, because it involves leadership, because it involves various aspects of other subjects also, जैसे psychology हो गया, sociology हो गया, political science हो गया. ये सारा contribution एक perfect discipline बनाता है. Discipline क्या होता है? एक subject जिसको हम further study करते हैं, एक foundation बनाता है. कोई भी subject एक research से नहीं बनता है. ठीक है? They need lot of other subjects to brief in to make a perfect discipline, to make a perfect research, so that further it could be learned, and some perfect assumptions could be derived from it. जो previous हमारा aspect था about the assumptions of OB, we have seen that how the disciplines have contributed into assuming that OB could be a learning aspect, OB could be a motivating aspect. How do we apply in terms of individual and in terms of organization? So these two things we have learned about in assumptions. Before also you have learned about the functions, duties, derivatives, and everything about OB. Now comes the learning objective, to understand the contribution of other disciplines in OB, brief analysis of each subject and the major contribution in terms of development, and to understand the core of the discipline. Okay, you could see the learning objectives in this. Uh, can you see the PPT clearly? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Huh. Yes, Ma'am. So, ma'am. so the first one is to understand the contribution of other disciplines in OB. What are the other disciplines? Other disciplines are sociological. Other disciplines are sociological, psychological, motivational, all these factors, disciplines like political science, psychology, all these disciplines are contributing in OB as a subject. ठीक है. दूसरी बात ये बोल रहा है कि आपको क्या लर्न करना है अबाउट द ब्रीफ एनालिसिस ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. That okay, fine, these subjects are contributing, sociology is contributing, psychology is contributing, social psychology is contributing, जो कि हम next slides में पढ़ेंगे, but anthropology is contributing. But the major contribution क्या हुआ इसके बाद, क्या इन subjects के brief contribution के बाद OB में क्या क्या development है, so that we have to analyze and study. ठीक है. Third is to understand the in core of discipline.
which we will understand that how these discipline, either it is political science, either it is psychology, either it is social psychology, all these disciplines, what are the in core का मतलब होता है कि इन सब्जेक्ट्स ने ओबी में परफेक्टली क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करी इन सब्जेक्ट्स ने। जैसे साइकोलॉजी, अगर आप एक एग्जांपल लोगे, एक इंस्टेंस लोगे कि साइकोलॉजी ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या कंट्रीब्यूशन करे, तो आप ये बोल सकते हो दैट साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है। और ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का अटमोस्ट प्रोवाइड किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन एंड एज एन इंडिविजुअल दोनों को स्टडी कर पाए, ठीक है। अब आप आ जाओ सेकंड में। सेकंड है अबाउट द कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स इन द फील्ड ऑफ ओबी, ठीक है, जो हम अभी बात कर रहे थे। व्हाट वर द कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स इन द फील्ड ऑफ ओबी, दैट इज साइकोलॉजी, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक ब्रीफ सब्जेक्ट है, यू नो दैट। सोशल साइकोलॉजी जहाँ पे जैसे सोसाइटी के थ्रू जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है उसको हम लोग सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। दिस इज इन द ले मैन टर्म, ठीक है। विल स्टडी इन ब्रीफ अबाउट द सब्जेक्ट। Now, third is about the sociology. Sociology is also a term subject. ये भी आप जानते हो कि एक perfect discipline है जिससे OB में ये derive हुआ है। Then there is anthropology, the study about man, ठीक है, कहाँ से man originate हुआ and how the man evolved all together. Evolution कैसे हुआ man का, ठीक है। दैट इज अबाउट दी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम मैन, कल्चर, civilization, all these come into anthropology. Anthropology is also studied in UPSC as a major subject. तो अगर किसी को बाद में अगर UPSC में जैसे after MBA if you want to prepare for UPSC, then you can take these subjects in particular. Or either if you are taking management, then you have to study all these fields in very brief. ओके, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सेकेंड इज योर फर्स्ट, वी विल टेक साइकोलॉजी, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो? इज द प्रेजेंटेशन Yes, विजिबल? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. If there is any network issue, Vita, please let me know so that I could further take into consideration. ठीक है? Ma'am, your voice is breaking Okay, sometimes. ma'am. Beta, I cannot help this. My voice is breaking. I'm trying my best. Hello? Now Yes, is it ma'am. all right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Psychology. If we take this subject, okay, psychology, as you can see, and you are well aware that what is psychology. OB is an applied behavioral science that is built upon the contribution from number of behavioral disciplines. देखो जो psychology है that is termed as a behavioral discipline, ठीक है। ये इसका behavioral discipline है क्योंकि ये human behavior को और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करता है, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करता है, दैट इज नोन एज साइकोलॉजी, and it has contributed majorly in organizational behavior. Second is the science that seeks to measure, explain, and sometimes changes the behavior of humans and animals is termed as psychology. वो science, this is psychology and it is a science that seeks to measure क्या, measure the human behavior, ठीक है। कैसे हम लोग as we have a brief discussion about the facts that the psychology could be measured into two terms, qualitative and quantitative, ठीक है। qualitative हम लोग कैसे measure कर पाएंगे, about the attitude that you're exhibiting, और मे बी एक परफेक्ट इंस्टेंस अगर हम कोट करें, जैसे अगर कोई डिमोटिवेट है, ठीक है, तो उसको हम मेजर कर पाएंगे कैसे, अगर डिमोटिवेट, इफ यू टेक एन इंस्टेंस दैट ए who is a person who is working in an organization, say Ram is working in an organization. There is a productivity which has to be attained, 100 units of productivity है एक मंथ में जिसको आपको अटेन करना है। उस चीज को अटेन करने के लिए राम इज वर्किंग डे एंड नाइट and he is giving
a lot of hard work in attaining the productivity. उस productivity को attain करने के लिए राम बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन at the end of the month he sees that, or the supervisor sees that he has attained only 80 units of productivity, which is not up to the mark. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो जो सुपरवाइजर था वो ये तो नहीं देख रहा है दैट उसने कितना एफर्ट लगाया है 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी अटेन करने के लिए, बट उसने 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं अटेन करी, इसलिए राम को बहुत कुछ सुनना पड़ा अपने सुपरवाइजर से, जिसके कारण वो डिमोटिवेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मेजर क्या कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो प्रोडक्टिविटी, वो है क्वालिटेटिव, जो कि क्वांटिटी में है, वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। आप मेजर क्या कर रहे हो दूसरे अगर इंस्टेंस में, आप मेजर क्या कर रहे हो कि on the base of productivity, Ram is getting demotivated because he cannot attain the perfect productivity which is provided by the supervisor. Now, यहाँ पे जो demotivation characteristics है, वो qualitative aspect है measurement का, ठीक है? So this has to be kept into mind, ठीक है? Measurement के दो aspects होते हैं, qualitative and quantitative. नाउ एक्सप्लेनिंग देखो, जैसे ये ह्यूमन बिहेवियर एग्जिबिट किया, आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है, आप तुरंत से बोल देते हो नो आई एम नॉट लाइकिंग इट, व्हाई? बिकॉज दिस बिहेवियर और दिस attitude was or maybe not acceptable to you. So there is a perfect explanation for every behavior you are exhibiting. जो भी आप बिहेवियर कर रहे हो, किसी के साथ भी कर रहे हो, उसको एक्सप्लेनेशन, उसकी हर एक बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन होती है, and sometimes changes the behavior of human and animals in terms of psychology. साइकोलॉजी को अगर हम समझेंगे, अगर हम चीजों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको, उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में साइकोलॉजी इज द utmost important factor, because you come to know and you measure, you explain things briefly about the human. जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम utmost importance देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके बिहेवियर को समझते हैं कि क्यों ये ऐसे डिमोटिवेटेड बिहेव कर रहा है। अगर आप उनकी बिहेवियर को समझ पाओगे तो ही आप उनको असिस्ट कर पाओगे और आगे की जो प्रोडक्टिविटी है वो पुट कर पाओगे, ठीक है? दैट हैज टू, दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है? Now coming to the third point, earlier the industrialist or the psychologist merely paid attention to the behavioral science or the human behavior. Rather, they administered effective work performance and solely paid relevant attention to fatigue, boredom, and other factors so that the work is not disrupted. You guys are studying principles of management. Who is teaching you principles of management? Hello? Ma'am, this topic hasn't been taught till now. No, I'm just asking who is teaching you principles of management. It isn't mentioned, I guess, ma'am. Okay, the topic is not there. So, because I just wanted to know, because until and unless you will be studying, the both of the subjects are interlinked to each other. Now I'll be explaining it from the core. ठीक है, इसलिए मैंने पूछा था that आपने principles of management पढ़ा है या नहीं पढ़ा. Now on the third topic, two topics are clear. जो दो point है वो clear है आपको? Yes, ma'am. Okay. Now the third point is about the earlier the industrialist or the psychologist merely paid attention to the behavioral science or the human behavior rather than they administer effective work performance and solely paid relevant attention to the fatigue, boredom, and other factors so that the work is not disrupted. Okay, now come to it line by line. Okay, we know that the Industrial Revolution started in 18th 17th century in Great Britain. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था एंड द फैक्ट्री एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो 17 18 सेंचुरी में हुआ था। एंड मेयरली वहां पे क्या होता था ना कि नॉर्मल आपका जो फैक्ट्री में जो भी काम होता था वो रूल ऑफ थंब बेसिस पे होता था। अब रूल ऑफ थंब बेसिस क्या होता है, जैसे आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, आपको जैसे अगर आपको
एक टेबल एक फैक्ट्री में बन रही है, तो उसमें क्या चाहिए? आपको वुड चाहिए, आपको प्लैंक्स चाहिए, आपको स्क्रू चाहिए, ऑल दीज थिंग्स वर नीडेड, सो यू नीड टू असेंबल देम। तो आपको ये तीनों चीज चाहिए, आप इनको असेंबल करोगे। तो ये रूल ऑफ थंब बेसिस पे होता था पहले काम, कि भाई ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको आपको असेंबल करना है एंड इट विल बी डन। तो उस टाइम की अगर बात हम करें, तो साइकोलॉजी वाज नॉट बेस्ड अपॉन द ह्यूमन बिहेवियर, इट वाज नेवर बेस्ड अपॉन द ह्यूमन बिहेवियर, इट वाज मोर ऑफ अ मोनोटोनस काइंड ऑफ थिंग, कि भाई आपको ये काम करना है, इतनी प्रोडक्टिविटी निकालनी है, फटीग हो, बोर्डम हो, ठीक है, उसके लिए हम कर सकते हैं कुछ, दैट आई कैन गिव यू फर्दर प्रोडक्टिव बेस्ड इंसेंटिव्स। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम दो तीन पहले तो हमारा, अगर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको पहले पढ़ना होगा। दैट उस टाइम क्लासिकल अप्रोच होता था, एक नियो क्लासिकल अप्रोच होता था जिसको हम लोग बिहेवियरल थ्योरी बोलते हैं। फिर आपका आया फिर आपका मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आने लगा, ठीक है, एंड फिर कॉन्टिजेंसी थ्योरी, ये सारा कुछ आने लगा। तो अगर हम इन थर्ड की बात करें, तो जो अर्ली अर्ली जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनको ह्यूमन बिहेवियर से कोई मतलब नहीं था, कि बंदा वो जो लेबर है, व्हाट ही इज एग्जिबिटिंग, इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न। व्हाट वाज देयर कंसर्न वाज परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस। अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आप काम कर सकते हो, तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगी। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो, then you are solely not relevant for the organization. So this was the major concept that was followed at those days. तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है साइकोलॉजी से रिलेटेड? Yes, ma'am. Yes, इसमें ma'am. इसमें मुझे बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अगर एनीथिंग दैट हैज टू बी एक्सप्लेन वंस अगेन। Ma'am, second वाला point में. Second wala point. Okay. The science that seeks to measure, explain, and sometimes changes the behavior of humans and animal is termed as psychology. देखो, ये basic, you can say it is a basic information or definition of psychology. एक science जो कि आपको जो human behavior है उसको measure करता है। measure कैसे होता है? quantitative, qualitative। उसको एक्सप्लेन करता है कि क्यों आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है, एंड समटाइम्स चेंजेस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। इन दोनों चीजों को लेके आप उस बिहेवियर में उस इंसान को समझते हो और उसको हेल्प करते हो और उसमें चेंजेस लाते हो, उसको कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। एक इंस्टेंस लो, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एन इंस्टेंस, लाइक से if you guys are there, if I take anybody's name, sorry for that, but मुझे समझाना है, इसलिए I'm going to take, किसका नाम लूं मैं? कोई कोई दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, आकाश। ओके, ठीक है। आकाश is not liking the class. If take an instance, Akash is not liking the class and he is telling that whatever she is teaching, I'm not getting it, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है उनका बिहेवियर। My concern would be that why Akash is demotivated, why he could not understand that explaining my explanation or something. So according to Akash, I have to change my teaching habits, ठीक है, according to him, because I have to explain him, because I have to make sure that each one of you could be well explained, और उन चीजों को आप समझ पाओ, even the smallest particularities could be understood by you, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे आकाश ने एग्जिबिट की डीमोटिवेशन, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस डीमोटिवेशन हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट वो क्यों डिमोटिवेटेड है, क्योंकि ही इज नॉट लाइकिंग द क्लास बिकॉज आई कुड नॉट टीच वेल, ठीक है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ही इज एग्जिबिटिंग अ डीमोटिवेटेड बिहेवियर, नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड, I have to change my behavior or change my teaching skills, and then I have to exhibit in the class, ठीक है। अब समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बेटा एक चीज समझ लो,
दैट जितना आप इंस्टेंसेस अपने आसपास के कोट करोगे, उन इंस्टेंसेस में आप डालोगे चीजों को, तभी आप उन चीजों को समझ पाओगे। ये चीज रटने की बिल्कुल नहीं है, ये चीज समझने की है। अगर इन चीजों को देखो, आप पॉइंट्स आपको याद हो सकता है, मैं आपको याद भी करवा दूंगी, कोई इसमें इशू नहीं है। बीइंग ए एमबीए स्टूडेंट तुरंत आपको याद हो जाएगा। अच्छा भाई, ये साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे ही याद होगी आपको, लेकिन चीजों को समझोगे तो फिर लिख पाओगे। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आप आ जाओ साइकोलॉजी के सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। देखो साइकोलॉजी है एक आपका, ये मैंने बनाया है, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशन, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिजाइन एंड वर्क स्ट्रेस। और ये क्या करता है इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इतनी सारी एट्रीब्यूट्स दिया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, फ्रॉम लर्निंग टू वर्क स्ट्रेस। एक एक करके मैं समझा रही हूँ आपको। लर्निंग क्या होता है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, ठीक है, आप ट्रेंड नहीं रहते हो, ठीक है, यू लर्न एंड डेवलप योरसेल्फ। आप ऑर्गेनाइजेशन के माहौल में अपने आप को ढालते हो, यू लर्न अबाउट द वेरियस पॉलिसीज एंड द पर्टिकुलरिटीज ऑफ द वर्क। ठीक है, उस कोर्स में आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 साल रहे, 3 साल रहे, आपने वर्क सीखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग बोलते हैं। तो साइकोलॉजी से लर्निंग एग्जिबिट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड आ गया आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अबाउट, मोटिवेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोटिवेशन इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, मोटिवेशन कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू monetary motivation and non-monetary motivation in an organization। ठीक है, मॉनिटरी मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें आप इंसेंटिव देते हो, शेयर्स देते हो, ओनरशिप देते हो। जहां पे आपका नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन आ गया, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन इज ऑल अबाउट the different aspects like your designation। ठीक है, देन योर आप किसी को डेजिग्नेट कर दो या टॉप लेवल अथॉरिटी में डाल दो, सो दीज आर दी नॉन मॉनिटरी मोटिवेशंस। ठीक है, यू अप्रेज हिम टू अ बेटर पोजीशन, दैट इज आल्सो अ मोटिवेशन, पार्ट ऑफ मोटिवेशन। So now, second is your personality. Personality is about what makes an individual. Individual is made up of the skills and the abilities, and that's what make a personality. जो आप हो, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसे बनती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आपके अंदर डिफरेंट कल्चर है, आपके अंदर डिफरेंट वैल्यूज है, आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हुई है, आप डिफरेंट एटीट्यूड एग्जिबिट करते हो। तो जो पर्सनालिटी होती है वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी आपको हेल्प करता है डेवलप करने में। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। इमोशंस, इमोशंस, यू नो व्हाट आर इमोशंस? डू यू अंडरस्टैंड इमोशंस? इमोशंस क्या होते हैं, मुझे कोई भी एक बताए। एनीबडी? आकाश, अभिषेक, एनीबडी? हेलो? जब हम अपने शब्द को बिना प्रकट किए हुए किसी का बात समझ जाते हैं तो उसे इमोशन कहते हैं। ओके, एंड हु इज दिस? कौन बोल रहा है, मुझे ये बताएं। सोनल, what is emotions? It's a feeling. Okay, it's a feeling. Feeling could be sad, could be happy. Do you exhibit emotions? आप emotions किस तरह से exhibit करते हो? आपको जब अच्छा नहीं लगता है, do you feel happy or do you feel sad?
I feel sad. Okay. So, great. Before जिसने आंसर दिया Sonal was there. Then comes the क्या होता है? Every individual has their own perception. ठीक है? Perception is a definite thing. Perception is about what do you think about a condition. ठीक है? जैसे if you take a situation, everybody has different thinking about COVID-19. ठीक है? It may be your perception. It cannot be others' perception. जो सोनल का perception है, वो अभिषेक का perception नहीं हो सकता है COVID-19 पे. अभिषेक का perception हो सकता है positive हो, अभिषेक का परसेप्शन हो सकता है नेगेटिव हो, सोनल का परसेप्शन हो सकता है पॉजिटिव हो, सोनल का परसेप्शन नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो इस तरह से परसेप्शन डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट होता है. ठीक है. नाउ कम्स द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज utmost essential in an organization. With the training, individual is developed. ठीक है. ट्रेनिंग भी डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है. देन ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेनिंग कराता है ताकि जो इंडिविजुअल है वो डेवलप कर दिया जा सके और उसे पता हो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बारे में. देन नेक्स्ट इज योर लीडरशिप इफेक्टिवनेस. ठीक है. लीडरशिप इफेक्टिवनेस क्या होता है? लीडरशिप जैसे अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ठीक है, तो आप उनको एग्जिबिट कर रहे हो या नहीं. जैसे अगर कोई बंदा है वो अथॉरिटिव पे है, जैसे टॉप जो सीईओ है, सीएफओ है, उनका काम क्या है? पॉलिसी बिल्ड करना, पॉलिसीज फ्रेमवर्क करना. ठीक है. सो वो अपनी लीडरशिप को निभा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं. ठीक है. दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द साइकोलॉजी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है? जो आप जॉब कर रहे हो, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में से, अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग द जॉब ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग फॉर द प्रोडक्ट, are you satisfied with what designation you have? Are you satisfied with the responsibilities that has been given by the organization to you? So that comes under the criteria of job satisfaction. Then next is individual decision making. Individual decision making is that is like जो जैसे अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है और आपको आपके लिए डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम की जाती है, तो उसमें आपका कितना रोल है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी फ्रेम करके दे दी, ओके, ठीक है, ये चीज आपको करना है, ये आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप देख लो. ठीक है. बस वो अगर रहे तो आपका जो इंडिविजुअल डिसीजन है वो कहीं खो जाता है. आप कोई भी इंडिविजुअलिटी पे डिसीजन नहीं ले पाओगे. इन दैट केस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग आपको होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप रिस्पॉन्सिबल रहो अपने टास्क के लिए. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक टेस्ट दो वेडनेसडे को, ठीक है, और उसमें आप खुद अपने आप को अप्रेज करो, मतलब खुद आप मार्किंग करो कि आपको कितना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट नॉलेज. ठीक है. तो अगर मैं आपको अप्रेज कर दूंगी, ठीक है, तो उसमें आपका इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग तो कुछ नहीं रहेगा. अगर आप खुद अप्रेज करोगे तो आपको पता चलेगा दैट आपको कितनी और मेहनत करनी है, आपको कितनी और एफर्ट, हाउ मच एफर्ट यू हैव टू पुट इन दी सब्जेक्ट टू नो दैट सब्जेक्ट, राइट, हाउ मच परफेक्शन यू हैव इन दैट सब्जेक्ट. तो ये इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग का पार्ट है. उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग क्रिएट द कोर कॉम्पिटेंसीज इन एन इंडिविजुअल. ठीक है. नेक्स्ट आया परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोडक्टिविटी बेसिस पे अप्रेज करती है. अप्रेज का मतलब होता है दैट जैसे हम लोग आपको अप्रेज करते हैं मार्क्स के बेसिस पे, उसी तरह प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे जो उनके सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको अप्रेज करते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल की डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि हम फर्दर स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज योर एटीट्यूड मेजरमेंट. एटीट्यूड मेजरमेंट मैंने पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया दैट एटीट्यूड एक टाइप का वैल्यू प्रपोजिशन होता है.
जो कि इंडिविजुअल एग्जिबिट करता है। और एटीट्यूड दो टाइप के हो सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के एटीट्यूड नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लिए, ठीक है। सो वी विल स्टडी इन ब्रीफ अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज इन एटीट्यूड। एंड एटीट्यूड क्या करता है, एटीट्यूड आपका निगेटिव भी हो सकता है एंड कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो। सो इट इज वेल मेजर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन and the supervisor for the performance of the individual. Now, next is your employee selection. Employee selection is like जो भी organization है, ठीक है, वो कुछ किसी को भी किसी जॉब के लिए, जैसे अगर हम ह्यूमन रिसोर्स के लिए या मार्केटिंग मैनेजर के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, तो हम किसी को भी उठा के उस डेजिग्नेशन में नहीं डाल सकते हैं, राइट। वी कैन नॉट पुट एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू आवर विल। वी हैव different skill set and the different skill set is the part of employee selection. So a different skill set, like if a person जो eligibility criteria होती है human resource employee की, वो होती है MBA in HR, okay, graduate, post graduate with relevant experience or no experience, then only MBA in HR. तो उस तरह से एम्प्लॉय सिलेक्शन होगा डिफरेंट डिजिग्नेशन के लिए, और जो एम्प्लॉय सिलेक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू स्किल्स होगा। देन कम द सेकेंड लास्ट, व्हाट इज वर्क डिजाइन। वर्क डिजाइन क्या होता है, जैसे अगर आप मार्केटिंग मैनेजर के लिए, हाँ जी बेटा बताओ। What is difference between attitude and behavior? बेटा टू डिफरेंट थिंग्स आते हैं। एटीट्यूड इज लाइक इट इज बेस्ड अपॉन what you are seeking right now. It is based upon the time and whatever situation you are into, ठीक है। ये एटीट्यूड आप पहले से नहीं सीखते हो, ठीक है। एटीट्यूड कम्स in the course of experiences, okay। Whatever attitude you have right now for the subject will be reflecting in this certain situation। इसी time period के लिए ये attitude होगा, नेक्स्ट क्लास के लिए ये एटीट्यूड नहीं होगा। वट एवर इट इज, पॉजिटिव और नेगेटिव, एटीट्यूड वुड बी दिस एंड एटीट्यूड फॉलोज द बिहेवियर, ठीक है। लाइक एक इंस्टेंस बताती हूँ, अगर इफ यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, लाइक यू नॉट लाइकिंग द सिचुएशन ऑफ दिस COVID-19, this is what you are not liking, this is the present situation. Now you exhibit the attitude that no, I'm not liking this situation, just sitting at home doing nothing, and it is not productive at all. This is your attitude for a certain situation. Now this attitude has to be followed into your behavior. अब ये एटीट्यूड को हम फर्दर बिहेवियर में फॉलो करते हैं। अब इस एटीट्यूड को हम बिहेवियर में जब फॉलो करते हैं तो वो परफेक्ट बन जाता है। मतलब कि आप इस COVID-19 के लिए पॉजिटिव ही नहीं हो, आप हमेशा ही नेगेटिव बिहेवियर एग्जिबिट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए लोग जब बोलते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं या फिर डिफरेंट पीपल हैं, जब हमारी बात होती है, दैट दे से दैट यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स some people or towards some situation. Now वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो, सर्टेन टाइम के लिए बोल रहे हो सकता है ऐसा बोलते बोलते अब आपके बिहेवियर में आ जाए दैट नहीं, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एटीट्यूड और बिहेवियर में। एटीट्यूड स्मॉल पार्ट होता है, एक सिचुएशन के लिए होता है, और उसको एग्जिबिट करते करते आप बिहेवियर में टर्न कर लेते हो, जो कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस हो जाता है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। शुड वी मूव टू वर्क डिजाइन? मैं बताऊं वर्क डिजाइन? Yes, ma'am. Yes. Okay. So work design is about the designing of the various designation and the responsibility according to the department. Now, if the work is designed like very creatively, जैसे marketing department है, तो marketing department का अगर आप ऐसा work design करोगे जो कि वो जो बंदा वहाँ पे join करेगा उसको मजा ही नहीं आ रहा है, there is no motivation, there is no learning, there is no development, no leadership in that work, तो वो बंदा नहीं करना चाहेगा। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डिपार्टमेंट फॉर्म कर रहे हो तो आपको क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा उस डेजिग्नेशन में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है, ताकि जो वो इंडिविजुअल है वो इंजॉय कर पाए, वो लर्न कर पाए, मोटिवेटेड रहे कि नहीं
यार मार्केटिंग है, आई हैव माई ओन, जो हम पहले बात कर रहे थे जॉब सेटिस्फैक्शन की, ये वर्क डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जॉब सेटिस्फैक्शन में, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की, ये सब सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक वर्क डिजाइन डेजिग्नेट करने के। जैसे अगर आप एक इंस्टेंस लो कि अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वर्क डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है, कि भैया इतना प्रोडक्टिविटी बनाना है 100 यूनिट्स, और इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ये मटेरियल्स देगी एंड यू हैव टू एग्जिबिट द टास्क, या आपको एक टास्क करना है 1 मंथ में, तो वो वर्क डिजाइन दैट विल नॉट मोटिवेट द इंडिविजुअल। ओके, नाउ वर्क स्ट्रेस इज like whatever designing of just a minute, who is not getting the link? Everybody is here. I've sent it. Who is Sudhanshu? Yes, ma'am. Sudhanshu, you have not got the link. I have sent it to everybody. Ma'am, Sudhanshu, Yes, ma'am. who told? Oh, Ayushi. Ayushi is there. Okay, Sudhanshu is there. Yes, ma'am. You've got the link now for the class. Yes, ma'am. Okay, so there was a WhatsApp message from you regarding you have not got the link. Okay. So last one was work stress. The work stress was देखो, जैसे अगर हम किसी भी वर्क को या वर्क डिजाइन को, या इतनी सारे अगर आप ऊपर से देखोगे, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, किसी भी साइकोलॉजी, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर इनमें से कोई भी लैक करेगा तो किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस होगा, ठीक है। अगर इसमें मोटिवेशन नहीं होगा तो इंडिविजुअल स्ट्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो वर्क को सही ढंग से में वो क्यों आना चाहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इमोशंस नहीं प्रेजेंट है किसी भी इस इंडिविजुअल। क्योंकि कलीग भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर, जो हमारे कलीग होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, वो हमारे साथ इमोशनली बिहेव नहीं करें तो वो भी एक वर्क स्ट्रेस का कारण है। अगर हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ना मिले ऑर्गेनाइजेशन से तो वो भी वर्क स्ट्रेस इंक्रीज कर देता है। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स which for the individual to take it, because अगर वर्क स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल है ये पहले अपॉर्चुनिटी पे कंपनी छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो कंपनी का ओनर है उसको सारी जो उसने ट्रेनिंग दी, उसको लीडरशिप दिया, सब कुछ प्लान करना पड़ेगा एक तरफ से, जिसके कारण उसका कॉस्ट भी जाएगा, जो उसने प्लान करा था वो सब खत्म हो जाएगा। सो दीज ऑल things are very effective in making an individual. That's why psychology जो हमें देता है, psychology हमें learning and all these informations are given, जिसको हम एक एक करके यहाँ पे OB में next chapters में पढ़ेंगे। ये इसलिए मैंने आपको ये इसलिए बताया जाता है OB में फर्स्ट चैप्टर्स में, ताकि आप वेल वर्स्ड हो जाओ that what has to be learned, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंड देन दीज ऑल मेक इफेक्टिव इंडिविजुअल, और ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो टाइम इज अप, आई थिंक, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपको ये शाम तक आई विल गिव यू द पीपीटी, आई विल मेल यू, ठीक है। सबको मैं Okay. मेल कर, जिसका मेल आईडी इज नॉट एडेड in the group, please ask your coordinators to add the mail ID. Eventually my number is there, okay? If you will not receive the mail, okay, ask me, I'll send you
separately. Ma'am, But I'll I send don't have your number. beta go in the group. Okay, you have group Okay. members over there. You can take my number from there. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Second is that please read the PPT. Okay, on Wednesday we'll be having जहाँ तक मैं पढ़ा पाऊंगी, it is well and good, and I'm sending you the PPT today itself. So Wednesday, whatever would be covered, I'm going to take a class test. Okay. Okay. Okay, ma'am. So I'm going to give you today itself. पढ़ लो एक दिन में अच्छे से. And I'll ask my coordinator also to send you all those क्या क्या पढ़ाई हुई है जो पहले मैंने cover नहीं करा है. Functions ये सारा ना. Yes, ma'am. Introduction part and all. Okay, okay. So if I get the time and I have one more class with you, then I'll be covering it. First, I will like to cover all these because इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. I have already covered psychology. Then you have all this social psychology and anthropology. So कुछ है ज़्यादा नहीं. I will cover it all. Like tomorrow, I'll be covering it. Today, I'll be sending you the PPT so that you will be well versed with the topic. And on Wednesday, I'll be taking a class test. Okay? Is that okay for all of you? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, better. Yes, So, ma'am. kindly give me the attendance over here in the chat box. फटाफट से. Write your name. Who is Ecomania? Ecomania कौन है? Ecomania कौन है? मुझे ये पहले बता दो. That he or she was having this answer the question. Everybody, send me your attendance. I have to mark it. Then you can leave for the other class. Ma'am, I did not receive the mail. You didn't. What's your name, dear? Badius Zama. Acha. I've send it to you like I don't know why you're not receiving. Go in the that spam folder and check it over there. Maybe. Excuse me, ma'am. Ma'am, I think there is two Rajesh Kumar, and I don't remember my roll number. Beta, what's your name? Rajesh. Yes. You have the coordinator's number, Sanyukta ma'am. Yes. So ask her. She'll send you the roll number. Okay. What about now? Now, अभी का attendance का क्या करना है? अभी अपना सिर्फ नेम डाल दो. I will mark you. ठीक है? Give your full name and write present. Okay. I will mark you. And in that case, I will send you on WhatsApp also that what is your roll number. Okay. Okay. And please ask everybody, please ask the coordinator to add your mail ID into that PGDM group so that you can get the mails. I don't know why he is not getting the mail. I have to check it once more. Yes, ma'am. I talked to Sanjita ma'am. She told me that you will get.
take it for priority. Don't hesitate to ask anybody, like whosoever is doing it. मैम it for pri- हाँ जी? सिलेबस नहीं मिला अभी तक मैम। बेटा वो तो कोऑर्डिनेटर से मिलेगा ना, मैं कैसे आपको सिलेबस दे दूं, है ना? किसका ओबी का सिलेबस चाहिए आपको? यस मैम। ठीक है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपका मेल आईडी एडेड है उसमें? यस मैम सुधांशु। ठीक है, मैं सबको मेल सेंड कर दूंगी। आस्क एवरीबॉडी। हाँ जी मैम प्लीज मैम प्लीज एवरीवन। हाँ मैम सबको सेंड कर देना ये करें। हाँ, मैं सबको सेंड कर दूंगी, बट यू whosoever is not added the mail ID, please ask your coordinator to add it. मैम मैंने मैम से बात किया था, मैम ने बोला कि आईटी डिपार्टमेंट से बात करूंगी मैं। हाँ, तो प्लीज आप उनको बोल दो, मैं भी बोल दूंगी। व्हाट्स योर नेम डियर? एक राजेश का रोल नंबर डालना है एंड देन मुझे भी मैम, मेरा भी रोल नंबर। हाँ बताओ क्या? बदियुस जमा। ठीक है, और आप अपना चेक करो मेल आईडी। Okay, Okay, I've sent you separately also. Yeah, ma'am. I received the mail of PPT, but today the link I did not receive. Okay, because you are not added, na dear. You are not added over there. Yeah. Okay. So, listen everybody. From tomorrow, whatsoever the class would be, OB class, यही link रहेगा. ठीक है? The link will not change. Okay? Thank you. ओके मैम। I will send you one mail, brief mail, और ये link change नहीं होगा, इसी पे मैं class लूँगी. Okay? ओके मैम। Okay, dear. कोई issue? You have got the PPT mail. I will send you this PPT also. And जिसका roll number का case है, वो मेरे को बस PGDM वाले group में please डाल दो कि roll number चाहिए. I'll send it to you. ठीक है? ओके मैम। Okay. Any other thing, you can contact me. Okay? ओके मैम। Okay, thank you. Thank you everyone. थैंक यू मैम।